السلام علیکم۔ میں ہوں تسکین عالم۔ انگلش میں بہت زیادہ اور بار بار استعمال ہونے والے 2265 الفاظ کی 15ویں 15th قسط جو لفظ نمبر 751 سے 800 پر مشتمل ہے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ ورڈز ان 2265 الفاظ کا حصہ ہیں جو ایک انٹرنیشنل ریسرچ کے مطابق انگلش بولنے میں بہت زیادہ اور بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ اگر یہ تمام 2265 الفاظ آپ کی ووکیبلری کا لازمی حصہ بن جائیں تو آپ کی انگلش بولنے اور لکھنے کی صلاحیتوں میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ ان الفاظ کو اچھی طرح سمجھیے، ان کے معنی سمجھیں، ان کا تلفظ غور سے سنیں اور آپ بھی ان الفاظ کو صحیح تلفظ سے کم ایک دفعہ ضرور بولیں۔ ان الفاظ کا جملوں میں استعمال دیکھیں اور کوشش کر کے ایسے ہی مزید جملے بنائیں۔ تو آئیے آج کے 50 الفاظ دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا لفظ ہے ٹول۔ اس کے معنی ہے اوزار، آلہ، وسیلہ۔ ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جملہ ہے کیپ یور ٹولز ان ورکنگ کنڈیشن۔ اپنے آلات کو کام کرنے کی حالت میں رکھیں۔ واک، اس کے معنی چلنا، پیدل چلنا، ٹہلنا۔ ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جملہ ہے He could not walk a few steps۔ وہ چند قدم بھی نہیں چل سکا۔ وائٹ، اس کے معنی سفید، ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ I like white clothing۔ مجھے سفید لباس پسند ہے۔ ونڈ، اس کے معنی ہوا، پھونک مارنا، بجانا۔ ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ The wind is blowing west to east۔ ہوا مغرب سے مشرق کی طرف چل رہی ہے۔ اچیو، اس کے معنی حاصل کرنا، ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ٹرائی یور بیسٹ ٹو اچیو یور ٹارگیٹس۔ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ایڈریس، اس کے معنی ہے پتہ، خطاب کرنا، توجہ کرنا۔ ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دا ایڈریس آن دی envelope واز انکریکٹ۔ لفافے پر پتہ غلط تھا۔ اٹینشن، اس کے معنی توجہ، ناؤن ہے یہ۔ دا ٹیچر آسکڈ اسٹوڈینٹس ٹو گیو ہم فل اٹینشن۔ استاد نے طلبہ سے کہا کہ وہ اس پر پوری توجہ دیں۔ ایوریج، اس کے معنی اوسط، درمیانہ۔ ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایوریج انکم از ویری لو۔ ہماری اوسط آمدنی بہت کم ہے۔ بلیو، اس کے معنی یقین کرنا، ناؤن ہے یہ۔ نو ون بلیوڈ ہم۔ کسی نے اس پر یقین نہیں کیا۔ بیونڈ، اس کے معنی دسترس سے باہر، اس پار، دوسری طرف۔ پریپوزیشن اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جملہ ہے پرچیز آف گولڈ از بیونڈ دی پرچیزنگ پاور آف ایوریج پاکستانیز۔ سونے کی خریداری اوسط پاکستانیوں کی قوت خرید سے باہر ہے۔ کیریئر، اس کے معنی ہے معاش، پیشہ، روش۔ ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ شی وانٹس ٹو میک ہر کیریئر ان میڈیسن۔ وہ طب میں اپنا پیشہ بنانا چاہتی ہے۔ کلچر، اس کے معنی ثقافت، تہذیب۔ ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایوری کنٹری ہیز اٹس اون کلچر۔ ہر ملک کی اپنی ثقافت ہوتی ہے۔ ڈیسیشن، اس کے معنی فیصلہ، ناؤن ہے یہ۔ وی آر ویٹنگ فار یور ڈیسیشن۔ ہم آپ کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ ڈائریکٹ، اس کے معنی سیدھا، براہ راست، رہنمائی کرنا۔ ایڈجیکٹو اور ایڈورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ہی از ٹرائنگ ٹو ٹیک اے ڈائریکٹ فلائٹ ٹو دا UK۔ وہ برطانیہ کے لیے براہ راست پرواز لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایونٹ، اس کے معنی واقعہ، انعقاد، تقریب، ناؤن ہے یہ۔ The next event will now be held after 1 year۔ اگلا انعقاد اب 1 سال بعد ہوگا۔ ایکسیلنٹ، اس کے معنی شاندار، بہت عمدہ۔ ایڈجیکٹو اور انٹرجیکشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ فخر زمان's performance in PSL was excellent۔ PSL میں فخر زمان کی کارکردگی شاندار رہی۔ ایکسٹرا، اس کے معنی اضافی، فاضل، مزید۔ ایڈجیکٹو اور ایڈورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دس کمپنی از آفرنگ سم ایکسٹرا بینیفٹس۔ یہ کمپنی کچھ اضافی فوائد پیش کر رہی ہے۔ انٹیلیجنٹ، اس کے معنی ذہین، ایڈجیکٹو ہے یہ۔
अयूब इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अयूब एक ज़हीन लड़का है। इंटरेस्टिंग, इसके माने दिलचस्प, एडजेक्टिव है ये। द स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, कहानी बहुत दिलचस्प थी। जूनियर, इसके माने छोटा, उम्र में छोटा, कम रुतबा, कम मर्तबा। एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। रशीद वाज अ जूनियर टू वसीम इन द कॉलेज। रशीद कॉलेज में वसीम से छोटा था। मॉर्निंग, इसके माने सुबह, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं हमेशा सुबह सवेरे उठता हूँ। पिक, इसके माने चुनना, उठाना, ले जाना, वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई विल पिक यू अप फ्रॉम स्कूल एट 1 PM। मैं आपको दोपहर 1 बजे स्कूल से ले जाऊंगा। पुअर, इसके माने गरीब, मोहताज। एडजेक्टिव है ये। द नंबर ऑफ पुअर इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। गरीबों की तादाद हर साल बढ़ रही है। पॉट, इसके माने बर्तन, देगची, प्याला, डालना। ए लिटिल पॉट इज सून हॉट। एक छोटा सा बर्तन जल्द ही गर्म हो जाता है। प्रेटी, इसके माने खूबसूरत, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। शी इज बाय नो मीन्स प्रेटी। वो किसी भी तरह खूबसूरत नहीं है। प्रॉपर्टी, इसके माने है जायदाद, इमलाक। नाउन है ये। ही लेफ्ट बिहाइंड ए लार्ज प्रॉपर्टी फॉर हिज फैमिली। उसने अपने खानदान के लिए एक बड़ी जायदाद छोड़ी। रिसीव, इसके माने वसूल करना, वर्ब है ये। मुजम्मिल विल रिसीव हिज प्राइज इन द कमिंग इवेंट। मुजम्मिल आने वाली तकरीब में अपना इनाम वसूल करेगा। सीम, इसके माने दिखाई देना, नजर आना, लगना, वर्ब है ये। आई सीम टू हैव कलेक्टेड ए लॉट ऑफ शूज। लगता है मैंने बहुत सारे जूते इकट्ठे कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। शॉपिंग, इसके माने खरीदारी करना, नाउन है ये। आई हैव टू गो शॉपिंग टुडे। मुझे आज खरीदारी के लिए जाना है। साइन, इसके माने अलामत, आसार, दस्तखत करना। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। देयर आर नो साइंस ऑफ प्राइसेस कमिंग डाउन। कीमतों में कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। स्टूडेंट, इसके माने तालिब इल्म, नाउन है ये। देयर आर नॉट मेनी स्टूडेंट्स इन द न्यू स्कूल। नए स्कूल में ज्यादा तलबा नहीं हैं। टेबल, इसके माने मेज, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द टेबल वॉज नॉट क्लीन्ड प्रॉपरली। मेज ठीक से साफ नहीं की गई थी। टास्क, इसके माने मुअय्यना काम, काम देना, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। ही कुड नॉट कंप्लीट द टास्क इन द गिवन टाइम। वो मुकर्ररा वक्त में मुअय्यना काम मुकम्मिल नहीं कर सका। यूनिक, इसके माने मुनफरिद, बेमिसाल, अनोखा। एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। वजाहत इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग ओल्ड यूनिक आर्टिकल्स। वजाहत को पुरानी अनोखी चीजें जमा करने का शौक है। वुड, इसके माने लकड़ी, नाउन है ये। द किचन कैबिनेट्स आर यूजुअली मेड ऑफ वुड। बावर्ची खाने की अलमारियां उमूमन लकड़ी से बनी होती हैं। एनीथिंग, इसके माने कुछ भी, कोई भी चीज, प्रोनाउन और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। द पार्लियामेंटेरियंस कैन से एनीथिंग इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अरकान पार्लियामेंट कुछ भी कह सकते हैं। क्लासिक, इसके माने आला, बेहतरीन, मेयारी, कदीमी। एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेनी पीपल लाइक ओल्ड क्लासिक मूवीज। बहुत से लोग पुरानी कदीमी फिल्में पसंद करते हैं। कंपटीशन, इसके माने हैं मुकाबला, मुसाबकत, नाउन है ये। फाइनली द टू टीम्स आर आउट ऑफ कंपटीशन। आखिरकार दो टीमें मुकाबले से बाहर हैं। कंडीशन, इसके माने हैं हालत, कैफियत, शर्त, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज इम्प्रूविंग ग्रेजुअली। मरीज की हालत बतदरीज बेहतर हो रही है। कॉन्टैक्ट, इसके माने है राब्ता, राब्ता करना, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई विल नॉट कॉन्टैक्ट यू एनी मोर। मैं अब आपसे राब्ता नहीं करूंगा। क्रेडिट, इसके माने उधार, सेहरा,
नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। मंजूर हैज रिक्वेस्टेड द बैंक टू गिव हिम सम क्रेडिट। मंजूर ने बैंक से उसे कुछ उधार देने की दरख्वास्त की है। करंटली, इसके माने इस वक्त। एडवर्ब है ये। करंटली ही इज जॉबलेस। इस वक्त वो बेरोजगार है। डिस्कस, इसके माने गुफ्तगू करना, बहस करना। वर्ब है ये। दिस इशू विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट मीटिंग। आइंदा इजलास में इस मामले पर गुफ्तगू की जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन, इसके मायने है तकसीम, बांट। नाउन है ये। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स वॉज नॉट मेड प्रॉपरली। रकूम की तकसीम दुरुस्त तरीके से नहीं की गई। एग, इसके मायने अंडा। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द प्राइस ऑफ एग्स इज इंक्रीजिंग रैपिडली। अंडों की कीमत तेजी से बढ़ रही है। इंटरटेनमेंट, इसके मायने तफरीह, तमाशा, मेहमान नवाजी। नाउन है ये। देयर वॉज नो इंटरटेनमेंट दिस मंथ। इस महीने में कोई तफरीह नहीं थी। फाइनल, इसके मायने हैं आखिरी, हतमी। एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। द फाइनल डिसीजन ऑफ द चेयरमैन इज बीइंग अवेटेड। चेयरमैन के हतमी फैसले का इंतजार किया जा रहा है। हैप्पी, इसके मायने खुश होना। एडजेक्टिव है ये। यू डू नॉट लुक हैप्पी टुडे। आज तुम खुश नहीं लग रहे हो। होप, इसके मायने उम्मीद, आस, उम्मीद करना। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई होप ही विल पास द एग्जामिनेशन। मुझे उम्मीद है कि वो इम्तहान पास कर लेगा। आइस, इसके मायने बर्फ, जमना। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द डिमांड फॉर आइस इंक्रीजेज इन समर। गर्मियों में बर्फ की मांग बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी इंग्लिश वोकेबलरी में कुछ न कुछ इजाफा किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकॉन को प्रेस करें, और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश बेहतर करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।